Hello and welcome to your physics class. Today our topic is electric field and potential. What is the difference between the two and relation between the two? We will discuss all these. First difference is electric field is a vector quantity. This is a vector quantity and potential is a scalar quantity. It is represented by E and it is represented by P. So we put arrow mark over it because it is vector. Now at any point, if we write electric field, so it has three components Ex, Ey and Ez. Being a vector, it has different value in different directions, but there is no such case with the potential. Potential at a point is itself V. It has no component. At any point we can find potential very easily. No use of vectors here, but here we have to take care of a vector. So first of all, I tell you what is field. Basically field is nothing but it is the force, electric force on unit charge. You know Coulomb's law. If I have a source charge Q and a test charge Q naught, test charge is always positive, source charge may be positive or negative. What will happen? Either they will attract each other or repel each other with a force which is equal to Q naught upon R square. R is the distance between them. If the source charge is also positive, then test charge will move outward. This will be the direction of electric field in this case. If this is x-axis, so Ex will be equal to this one. Ex will be, in this case, will be equal to force on unit charge. Here Q naught charge is there, so unit charge पे कितना होगा? Divide by Q naught. So this is KQ upon R square. This is the formula for electric field. But this is for point charge only. We will solve today electric field due to various kinds of charge distributions. We will solve all these. First, the basic formula to find the electric field due to a point charge is this. Similarly, how will you find potential? So first of all, I tell you what is potential. Potential is basically work done on unit charge. I write this formula here. This is KQ upon R square. This is valid for point charge only, and this is arrow. You can write unit vector here. You know the same charge I am taking here. This is the source charge Q. At any distance R, we have a test charge, suppose Q naught. How much force is acting on it? That is Q naught upon R square. Now this charge is further moved by small distance. मान लिया इसको हमने यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा और इसको मूव कर दिया by small displacement dr. तो some work is done for small displacement. वैसे तो क्या है ये f वेरिएबल फोर्स है, लेकिन अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेरी वेरी स्मॉल है तो फॉर दैट टाइम दिस f इज कांस्टेंट. तो उस केस में हम सीधा f डॉट डिस्प्लेसमेंट dr ले सकते हैं और f की वैल्यू पुट करेंगे इसमें. तो f बेसिकली क्या है हमारा? From the definition of electric field, that is F upon Q naught, force on unit charge. So F is replaced by Q naught into E dot dr. This is the work done. Now the work done on unit charge, this is potential. And basically this is potential को V से लिखते हैं, लेकिन basically क्या है ये? Potential difference है इन दो पॉइंट्स के बीच का, तो इसलिए इसको dV से लिखेंगे, potential difference. पोटेंशियल एट ए पॉइंट और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क है. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू क्लोज पॉइंट्स डीवी से लिखेंगे, और पोटेंशियल एट ए पॉइंट मींस दैट इज आल्सो पोटेंशियल डिफरेंस बट सेकंड पॉइंट इज एट इंफिनिटी, तो वहां का डिफरेंस होगा. दैट विल बी ई डॉट डी आर. ये होगा हमारा. लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है समझना कि यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? दैट इज बाय सिस्टम ऑफ चार्जेस, उसके द्वारा वर्क हो रहा है. और जो पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन. तो इसलिए अगर हम सिस्टम के द्वारा ले रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी du दैट इज माइनस dw, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन. इसलिए यहाँ पे हम माइनस साइन लगाएंगे बाद में. अगर हम वी आर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, इसको दूर जाने से हमने रोकना है, इसको आगे से फोर्स, इसको मूव करने नहीं देना, तो उस टाइम पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ऑटोमेटिक माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे. लेकिन अगर वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ माइनस साइन लगाएंगे. दिस वर्क डन बाय दिस सिस्टम
अगर सिस्टम का वर्क निकाल रहे हैं तो उसका नेगेटिव लेंगे, दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने खींच दिया तो हम सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, सिस्टम तो उसको वापस ले जाना चाह रहा है, हम उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और छोड़ते ही क्या होगा, सिस्टम अपने आप उसको ले जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो यहां से एक रिलेशन आ जाएगा हमारा, दैट इज dv इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू, अगर इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दिस विल बी e इंटू डी आर। और यहाँ पे एक माइनस साइन जरूरी है क्योंकि नेगेटिव ऑफ द वर्क डन है, तो दिस इज माइनस ई डी आर एंड दिस इज द फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, पोटेंशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब यहाँ पे जो है, अगर हमें पोटेंशियल पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके। अब यहाँ पे V का फॉर्मूला क्या होगा, ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसी तरह से अगर पोटेंशियल निकालना है इसके कारण तो कैसे निकालेंगे, इसी को हम फर्दर आगे सॉल्व कर देंगे, इसी को फर्दर सॉल्व कर देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम दिस, KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू dr, एंड दिस विल बी विद माइनस साइन। यहाँ पे अगर इसको पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो दिस विल बी माइनस साइन, क्योंकि मैंने बताया था अभी नेगेटिव ऑफ द वर्क डन लेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करो, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, dv, इसका इंटीग्रेशन, और इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो लेते हैं तो दैट विल बी v, इस पॉइंट पे मान लिया पोटेंशियल v है, इंफिनिटी पे जीरो, तो दिस विल बी जीरो माइनस v, दैट विल बी इक्वल टू माइनस KQ कॉमन और ये dr अपॉन r स्क्वायर, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी KQ इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस 1 बाय r, और r की वैल्यू कहां से कहां तक, यहां से r से इंफिनिटी, तो दैट विल बी r टू इंफिनिटी, और इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस से माइनस कैंसिल, एंड दिस v विल बी इक्वल टू KQ एंड दिस दैट विल बी 1 बाय इंफिनिटी माइनस 1 बाय r, and 1 by infinity is your 0, so this v will be equal to KQ upon r. This is the formula for potential due to a point charge. तो हम ये भी फॉर्मूला यहाँ पे नोट कर लेते हैं, KQ upon r। तो ये स्केलर है और ये वेक्टर है और ये इसमें इसकी बेसिक डेफिनेशन है। तो वी हैव डिराइव्ड 4 मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जिसके ऊपर आगे का जो है डिस्कस करेंगे। दिस वन E is equal to माइनस dv by dr, और दूसरा अगर हमने पोटेंशियल निकालना है तो उसको dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। तो इसको यूज करके हम किसी भी टाइप की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फील्ड निकाल सकते हैं। नाउ आई स्टार्ट। मान लिया हमारे पास एक कोई भी जो है रिंग है, दिस इज ए रिंग, और इसके ऊपर चार्ज स्प्रेड है, चार्ज इज स्प्रेड ओवर द सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग। तो यहाँ पे चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा लेंगे। अगर इसकी रेडियस r है तो इसके ऊपर टोटल कितना चार्ज स्प्रेड है वो मान लिया q है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, q अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द रिंग, दैट इज 2 पाई r। ये हमें पता है। अब पॉइंट ये है कि इसके सेंटर पे बताओ कितना पोटेंशियल है और कितना फील्ड है। पोटेंशियल निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, फील्ड निकालना है तो ये, लेकिन जो फील्ड निकालना है तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है वेक्टर के अनुसार, इसमें कोई जरूरत नहीं। तो अब देखो यहाँ पे अगर फील्ड निकालना है तो मान लिया मैंने एक ये कोई भी यहाँ पे पॉइंट चार्ज ले लिया, ये dq, और इसके कारण यहाँ पे फील्ड होगा इस तरफ, और वो फील्ड कितना होगा de, फील्ड भी स्मॉल होगा, de कितना वैल्यू होगी k dq अपॉन r स्क्वायर, और dq की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज यहां से यू नो लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl, तो dq लैम्डा इंटू dl, और ये जितनी भी लेंथ लेंगे तो इसका मतलब सीधा है कि इसके अपोजिट में ऐसा ही चार्ज यहाँ पे होगा सेम, वो क्या करेगा, वो इसको इस तरफ रिपेल करेगा, तो दोनों के कारण नेट फील्ड जीरो। ऐसे ही यहाँ पे इस dq के कारण यहाँ पे फील्ड इस तरफ होगा, इसका इस तरफ होगा, तो एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब पॉइंट ये है यहाँ पे, ये तो एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड इट कि सेंटर पे जीरो होगा, लेकिन ये दे दिया जाए कि भाई सेंटर से थोड़ा सा यहाँ पे जीरो होगा नहीं होगा, जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा, तो हाउ कैन यू प्रूव कि यहाँ भी जीरो होगा, इसको कैसे प्रूव करें।
और पोटेंशियल की बात करें अगर, तो सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ पे होगा, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारा, E इक्वल टू माइनस dV/dr। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें हर जगह जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करेंगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट, तो पोटेंशियल जो सेंटर पे होगा वही इसके सरफेस तक वही सेम रहेगा, कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट व्हाई पोटेंशियल रिमेन्स सेम, इसको प्रूव करेंगे। इसके लिए मान लिया पहले इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूव करते हैं। इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसको एक सॉलिड, इंस्टेड ऑफ सॉलिड वी टेक इट बिकॉज चार्ज इज नॉट इनसाइड, आई एम टेकिंग इट होलो स्फेरिकल सेल, होलो स्फेरिकल सेल, और इसके ऊपर जो है ये चार्ज स्प्रेड है और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो मान लिया सिग्मा है। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज Q डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर। चार्ज अब सरफेस पे स्प्रेड है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। तो इसके सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, अभी प्रूव किया है हमने, क्योंकि उसमें भी वही सिमेट्री है, जैसे रिंग का था ऐसे ही स्फीयर का होगा, होलो चार्ज स्फीयर, उसमें भी सिमेट्री होगी, हर जगह एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन हमने इस पॉइंट पे देखना है कि जीरो होगा नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कोई भी मैंने स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया, ये ds1 ले लिया ये, और ये इसकी डिस्टेंस यहां से ये r1 है। तो अगर मैं इसको पीछे प्रोजेक्ट करूं ये, तो यहां ये इधर कुछ ना कुछ सरफेस एरिया यहां ये कट करेगा, इस सरफेस एरिया का नाम मैंने रख दिया ds2 और ये डिस्टेंस होगी r2। तो अब ये यहां पे कितना चार्ज होगा dq, ये dq की वैल्यू कितनी होगी, उसके कारण यहां पे फील्ड होगा लेफ्ट, और इसके कारण फील्ड होगा राइट, और नेट फील्ड कितना होगा माइनस कर देंगे। तो अब यहां पे फील्ड निकालना है मैंने इसके कारण, तो दैट इज E इज इक्वल टू k dq अपॉन r1 स्क्वायर इसका, और उसका फील्ड इसके अपोजिट होगा तो माइनस हो जाएगा k dq। अब वो जो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो मान लिया हमने dq डैश है, जरूरी नहीं इस पे चार्ज सेम हो, क्योंकि एरिया ज्यादा लग रहा है तो चार्ज भी डिफरेंट होगा, तो dq डैश ले लिया, डिस्टेंस भी अलग है, दैट इज r2 स्क्वायर। तो नाउ दिस इज k डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर इनटू dq की वैल्यू, अब जितना एरिया होगा उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर, तो दिस विल बी सिग्मा इनटू ds1 माइनस k इनटू ये चार्ज यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सेम है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो सिग्मा इनटू ds2 डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर, और यहाँ से k सिग्मा कॉमन आ गया, ds1 बाय r1 स्क्वायर माइनस ds2 बाय r2 स्क्वायर। अब ये क्या है, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का आपको पता होगा, जैसे ये कोई भी सरफेस एरिया है और ये सेंटर है, ये इसकी रेडियस r है, ये एरिया ds है, तो सॉलिड एंगल जो होता है d ओमेगा दैट इज ds अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे ds1 अपॉन r1 स्क्वायर ये सॉलिड एंगल है, और ये सॉलिड एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों ये क्या है, सॉलिड एंगल है, d ओमेगा माइनस d ओमेगा, एंड दिस इज k सिग्मा एंड होल इज जीरो। तो इन दोनों के कारण जीरो है, तो इधर से कोई भी अगर हम ऐसे ही पेयर बनाएंगे तो उसके कारण भी जीरो होगा। तो पूरे इसके कारण एवरीवेयर ये पॉइंट से सेंटर में ले चाहे कहीं भी ले हमेशा जीरो होगा। अब पोटेंशियल पे आते हैं, हाउ द पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट कैसे रहेगा। पोटेंशियल के लिए बेसिक डेफिनेशन है हमारी, अगर कोई भी चार्ज है r डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है तो वेरी सिंपल kq अपॉन r, बिल्कुल इजी डेफिनेशन है। अब मैंने यहाँ पे एक उसी तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर स्फेरिकल सेल ले लिया, चार्ज इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्प्रेड है यूनिफॉर्मली, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है सपोज, और इसकी रेडियस उसी तरह से मैंने r ले ली। तो इसके ऊपर इसी तरह से मान लिया मैंने ये स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया कोई भी ds, और सेंटर पे अगर निकालना है तो बहुत इजी है, सेंटर के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं। मान लिया ये एक स्मॉल हमने चार्ज लिया है यहाँ पे सरफेस एरिया ds, तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा dq दैट इज सिग्मा इनटू ts। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा इसके कारण, तो ये रेडियस r, अगर ये पॉइंट सेंटर पे है तो बहुत इजी है, कैसे, इसका पोटेंशियल यहाँ पे स्मॉल होगा dv दैट इज इक्वल टू k इनटू ये डेफिनेशन लगाए k q की जगह dq अपॉन r की जगह कैपिटल R, ये आ जाएगा, और dq की वैल्यू कितनी है हमारी, दैट इज सिग्मा ds। या तो सिग्मा की टर्म्स में निकालना है तो सिग्मा ds लिखो, नहीं तो इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो।
ये सेम है। टोटल पोटेंशियल निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर दो, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या है, टोटल चार्ज इसका, तो ये आ गया। इन टर्म्स ऑफ अगर सिग्मा निकालना है तो यहाँ पे सिग्मा पुट कर देते हैं पहले, तो के डी क्यू की जगह क्या रखते हैं, सिग्मा इंटू डी एस अपॉन आर, उसके अंदर के सिग्मा ये कांस्टेंट और आर भी कांस्टेंट, और डीएस का इंटीग्रेशन क्या होगा, पूरे का सरफेस एरिया, दैट इज के सिग्मा ओवर आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। और ये इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ के सिग्मा इंटू एक आर कैंसिल, तो ये आ जाएगा के सिग्मा इंटू 4 पाई आर। और सिग्मा की बेसिक वैल्यू क्या है, सिग्मा, सिग्मा इज टोटल चार्ज, अगर इस पे क्यू मान लिया मैंने, टोटल सरफेस एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर, ये 4 पाई आर ये कैंसिल होगा तो वही के क्यू अपॉन आर सेम आएगा ये। तो इसका मतलब सेंटर पे तो फिक्स है के क्यू अपॉन आर निकाल लिया, लेकिन पॉइंट ये है कि सेंटर से अगर यहां निकालना हो हमें तो यहां भी सेम रहना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर कांस्टेंट जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो यहां कैसे प्रूव करेंगे कि यहां भी पोटेंशियल सेम आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे चेंज हो जाएगा क्योंकि ये इसके नजदीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, लेकिन पोटेंशियल यहाँ पे सेम रहेगा। सेंटर से सरफेस तक आएंगे तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो उसी तरह से हम एक सिमेट्री यूज करेंगे इसमें। इन दिस सेम वे, मान लिया इस पॉइंट पे हमने निकालना है, तो एक तो ये चार्ज हो गया यहाँ पे, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल, और इसको ही आगे प्रोजेक्ट कर दो, ये सरफेस एरिया हो गया। तो ये ds1 और ये r1 इस पॉइंट P पे निकालना चाह रहे हैं, और ये ds2 तो ये r2। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा पहले इन दोनों का निकाल लेंगे और फिर बाकी पेयर्स का। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा Vp वो किसके इक्वल होगा, K इंटू ये जो चार्ज है यहाँ पे, और ये चार्ज कितना है सिग्मा इंटू ds1, यहाँ पे इतना चार्ज है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस। अब स्क्वायर नहीं लेना यहाँ पे, खाली r है तो यहाँ पे r1 हो गया, प्लस पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्ट ऐड कर दो, माइनस नहीं करना क्योंकि उसमें तो वेक्टर था, वो अपोजिट डायरेक्शन थी माइनस, अब तो सीधा प्लस के सिग्मा, यहाँ पे जो चार्ज है dq तो वो जो है दैट इज ds2 आ जाएगा, सिग्मा ds2 डिवाइडेड बाय r2। अब यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है समझने का, इसमें के सिग्मा तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ds1 बाय r1 स्क्वायर इंटू r1 ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस ये ds2 बाय r2 स्क्वायर इंटू r2 लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये क्या है हमारा, दिस इज सॉलिड एंगल, ये जो सॉलिड एंगल है हमारा डी ओमेगा ये आ गया, ये और ये दोनों सेम होंगे अपोजिट, तो इसको डी ओमेगा को कॉमन ले लेंगे हम, तो के सिग्मा और यहाँ पे डी ओमेगा कॉमन, और नीचे ये आ जाएगा r1 प्लस r2। इफ दिस एरिया इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर बहुत ही स्मॉल है ये एरिया तो r1 प्लस एक पेयर लिया है ये, ओनली वन पेयर, और वन पेयर के कारण जो है ये जो है दो टर्म्स आई हैं इसमें, दो टर्म्स। तो ऐसे दूसरा पेयर अगर लेंगे यहाँ पे, ये और भी तो हो सकता है, बहुत सारे पेयर जो है इसके अंदर बनते हैं, ये ऐसे 1 2 3 ऐसे मान लिया, ये टोटल n ऐसे सरफेस एरिया है, ये जो सरफेस एरिया है इसका नाम ds3 लिख दिया, तो ये हो गया ds4। तो चार टर्म्स होंगी 1 2 3 4, तो हमने दो में दो दो के वो बना दिए इसमें पेयर्स में। तो अगर ये टोटल n है सरफेस एरिया और एक सरफेस एरिया का सॉलिड एंगल डी ओमेगा है, तो n इंटू डी ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी 4 पाई। अगर मैं इस सरफेस एरिया को सिंगल मानूं और इसका यहाँ पे सॉलिड एंगल डी ओमेगा है, और ऐसे ऐसे सरफेस एरिया टोटल जो है n है, तो n इंटू दिस सॉलिड एंगल टोटल पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल होगा। लेकिन हमने दो टर्म्स को एक साथ ले लिया, ये दो टर्म्स को पहले ही, तो ये ऐसे ऐसे जो सिंगल सिंगल कितने हो जाएंगे, ये तो ऑटोमेटिक ऐड हो रहा है, तो कितने n की जगह n/2 हो जाएगा ये, तो इसलिए इसको n/2 टर्म्स लेंगे यहाँ पे, दो टर्म दो दो ऐसे n/2 टर्म्स। तो इसमें टोटल आ जाएगा हमारा पोटेंशियल k सिग्मा 2r इंटू n/2 इंटू डी ओमेगा करेंगे यहाँ पे, n डी ओमेगा नहीं लिखेंगे n/2, क्योंकि ये पेयर साथ में हम ले रहे हैं हर एक में, तो 2 से ये 2 कैंसिल, और n डी ओमेगा कितना है हमारा 4 पाई, तो दैट विल बी k सिग्मा r इंटू दिस इज 4 पाई, एंड k इज योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा इज योर q/4 पाई r स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी, इनटू ये बच गया हमारा 4 पाई r, 4 पाई r, और 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, r से ये एक r कैंसिल, और ये हमारा k है ही, तो ये k q अपॉन r।
तो कहीं भी पॉइंट है, चाहे सेंटर पे है, कहीं भी है, एनीवेयर इनसाइड दिस होलोस्फीयर, तो पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा। तो सरफेस तक जो है पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो अब इस पे जो है क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपसे, मान लिया ये कोई भी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दी हमें और इसकी रेडियस आर है, एक पॉइंट ए दे दिया और ये बाहर पॉइंट बी दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे पोटेंशियल बताओ, फील्ड बताओ। तो ये पॉइंट इसके अंदर है और अंदर है तो जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही जो है सेंटर पे और हर जगह सेम होगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए फार्मूला आ जाएगा के क्यू अपॉन आर, और क्यू की वैल्यू पुट कर दो क्योंकि हमें क्यू नहीं दिया हुआ, सिग्मा दिया हुआ है। तो क्यू किसके इक्वल होगा, दैट इज सिग्मा इंटू इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और इसको अगर सॉल्व करेंगे के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो ये सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ये 4 पाई आर ये कैंसिल, 4 पाई आर कैंसिल, ये दिस एंड दिस इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, एक ही आर कैंसिल, ये पोटेंशियल आ गया। और इसमें ये फील्ड आएगा, ये अगर फील्ड निकालना है तो दिस विल बी द फील्ड। यहाँ पे इसका अगर फील्ड निकालना है तो अंदर तो फील्ड होगा नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए वो तो जीरो रहेगा यहाँ पे क्योंकि चार्ज ही नहीं है अंदर, प्रूव भी किया था इसमें। अगर बी पॉइंट पे निकालना है तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, तो इस सारे को ये मान लेंगे पूरा से पूरा चार्ज यहाँ पे सेंटर्ड है, और ये फिर एक्चुअल डिस्टेंस लेंगे, दैट इज के क्यू अपॉन एक्चुअल डिस्टेंस, इसको स्मॉल आर ले लो, दैट इज स्मॉल आर। और उसी तरह से क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस, ये आएगा। और के की वैल्यू पुट कर दो, तो दिस इज सिग्मा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल आर, ये 4 पाई कैंसिल, तो दिस इज सिग्मा आर स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, ये आ गया। अगर इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता या पोटेंशियल निकालना होता सरफेस पे पोटेंशियल निकालते हैं पहले, तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देंगे, तो स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट करेंगे तो ये वही आएगा, सिग्मा आर ओवर एप्सिलॉन नॉट, सेम आ जाएगा। ये जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही अंदर होगा, लेकिन बाहर पोटेंशियल कम होता जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, कम होता जाएगा। अगर यहाँ पे फील्ड निकालना है इस पॉइंट के ऊपर, तो सीधा उसी तरह से E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस का होल स्क्वायर आर स्क्वायर, क्यू की वैल्यू उसी तरह से सिग्मा की टर्म्स में लिख दो। तो इस तरह से हम पोटेंशियल और फील्ड किसी भी पॉइंट पे ऐसे निकाल सकते हैं।